Video we have done the two modes, that was the law of mass action and rate law. Law of mass action was the just the theoretical concept, and the rate law was the experimental concept. What we are using nowadays? Rate law. So rate law में the slow step is the rate determining स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. देन हमने किया था ऑर्डर. हमने कहा था कि लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी एंड इट विल फॉर्म सी प्लस डी. सो मेरे पास इसका जो ऑर्डर होगा कैसे हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं लॉ अकॉर्डिंग टू द अगर मैं देखूं लॉ ऑफ मास एक्शन. तो थ्योरेटिकली इसका होना चाहिए रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी. मीन्स ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी. लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि मेरे पास जो ऑर्डर रिएक्शन में दिया हुआ है वो हो. समटाइम्स जो रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटली 2 स्टेप्स में प्रोसीड करती है. देन वी विल see which is the slow step, and we can say that according to rate law r is equal to k is the rate constant, a raised to power p and b raised to power q. means p and q का मतलब कि according to the rate law जो भी coefficient होंगे हमारा order उसके equal ही होगा. Let us talk about the first order reaction. First order reaction and its units. So first order reaction, let us suppose a general reaction. A proceed to form B. Now our rate will depend upon only the one reactant species, means raised to power 1. So that means it is of the order क्या है इसका 1. Let us suppose a reaction NH4NO2, it will give us at 2N2 plus 2H2O. Now our rate will depend upon K and NH4NO2 raised to power 1. Now order is 1. Now जब हमारे पास जो रिएक्टेंट स्पीसीज ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड करती हैं, देन द ऑर्डर विल बी द फर्स्ट ऑर्डर reaction. That the reaction will be known as that this reaction is known as a first order reaction. Now units. Now units हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? रेट के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर per second, and this bracket stand for the molar concentration, and this molar concentration आपके पास क्या होगा? मोल पर लीटर. मीन्स जो आपके पास रिएक्टेंट स्पीसीज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर. लेट अस सपोज अ जनरल रिएक्शन A plus B because of a reaction depends only upon the one factor, one reactant. Now rate is equal to K and A, and we have K and its units is the mole per liter per second, and its क्या unit क्या है? Mole per liter. Now we have to find out the rate constant for the first order reaction. Now we will do mole per liter per second, and this will get divided
Now mole per liter के साथ mole per liter cancel and K will have the per second. So the rate constant for the first order reaction, the units will be K is equal to per second. So now let us talk about the second order reaction. Now talk about the second order reaction. Now let us suppose the two reactant species A plus A will give P, or we can say that 2A will give P. Now what will be the rate? Rate is equal to K, A and A, or we can say that rate is equal to K, A squared. Now what will the order of the reaction? 2, or how can we represent? 1 plus 1, 2. That's mean it's a second order reaction. Now ये जरूरी थोड़ी है कि ये सेम हो, ये रिएक्टेंट A प्लस B भी हो सकते हैं. Now rate is equal to K A B. Now K मेरे पास अब ऑर्डर क्या होगा? 1 प्लस 1. कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 2. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. Now how will we find the units? Again, let us suppose the reaction A plus B, or we can say that A plus A will form P. Now the unit rate is equal to क्या आएगा? K A B. Now the unit of the rate is equal to mole per liter per second, and the reactant per reactant का रेट कैसा होगा? A का क्या होगा? मोल पर लीटर, और B का भी क्या होगा? मोल पर लीटर. नाउ अब मेरे पास है रेट का यूनिट था मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ इट विल बी इक्वल टू के. अब इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर, इसका मोल पर लीटर, दोनों का मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. इट मीन्स इट इज मोल पर लीटर. वी कैन राइट स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू मोल per liter per second divided by mole per liter square. Now mole per liter ये इतना इसके बराबर है, तो ऊपर क्या है? हम इसको 1 भी लिख सकते हैं. 1 ये ऊपर जाएगा तो -2. नाउ पर सेकेंड. नाउ इट विल फॉर्म मोल पर लीटर 1 - 2 -1 पर सेकेंड. इस -1 का मतलब क्या होता है? ये अब इसका मतलब क्या है कि जब ये मोल ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पर मोल. और जब ये पर लीटर जब ऊपर जाएगा तो इट विल फॉर्म द लीटर एंड पर सेकेंड. सो सेकेंड ऑर्डर का जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, वो क्या होता है? पर मोल लीटर पर सेकेंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट अस सपोज कि सबसे पहले मेरे पास 3 रिएक्टेंट एक जैसे हैं, जिसमें भी बी प्लस बी और ए प्लस ए, इट विल गिव मी पी. एंड हाउ विल आई रिप्रेजेंट द रेट लॉ? के ए मीन्स ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. नो ये जरूरी थोड़ी है कि सेम हो, ए प्लस बी भी हो सकता है. तो rate will be expressed as K A B. It means order will be 1 plus 1 plus 1 means 3. Now तीनों अलग भी हो सकते हैं, A plus B plus C. तो rate will be K molar concentration of B, molar concentration of A, B and C. Then order will be equal to 1 plus 1 plus 1 3. So these are the third order reaction. Now how will find the units? Let us suppose the reaction. Any reaction you can suppose. This reaction, this reaction, this reaction. Now A plus B plus C will form P. A plus B plus C will form P. Now rate is equal to K A B C. Now इसका unit mole per liter per second. K.
इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, तो ये क्या बन गया, मोल पर लीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्या इतनी जो है इसके बराबर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 पर सेकेंड। नाउ मोल पर लीटर 1 माइनस 3 2 एंड पर सेकेंड। नाउ अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास मोल पर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, लीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सो कुछ जो रिएक्शंस होती हैं, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स कि कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होती। द रेट ऑफ दिस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट वेरी विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, मीन्स इन जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स नाउ इट ए रेज टू पावर ज़ीरो, बी रेज टू पावर ज़ीरो, मीन्स रिएक्टेंट तो यूज़ होंगे नो डाउट, लेकिन रेट जो है उनकी कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लें तो ज़्यादातर जो जहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही आप कैटालिस्ट यूज़ करोगे तो उसके जो सरफेस पे आके रिएक्टेंट अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर। सो मैंने इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया और अमोनिया यूज़ किया है। इसमें प्लेटिनम कैसे वर्क करेगा, कैटलिस्ट, और अंडर हाई प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा सरफेस, मेटल के सरफेस पे अमोनिया जो है अच्छे से जो सैचुरेटेड हो जाएगा। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि कोई फर्दर चेंज नहीं आ सकती रिएक्शन में। कंडीशन विल नॉट चेंज और अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया, चाहे आप कंडीशंस चेंज कर दो, अब प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, अब उसकी कंसंट्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो सैचुरेटेड हो गया है। तो इससे क्या होगा, अब रिएक्टेंट जो है, क्योंकि इसके सरफेस पे जितना था वो तो हो गया, इसके बिना ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम इसकी कंसंट्रेशन जितनी मर्जी चेंज करें, रिएक्शन सिर्फ जो है इस प्लेटिनम कैटलिस्ट की वजह से होगी, जितना इसके ऊपर सैचुरेटेड होगा उसकी वजह से होगी। तो अभी इसको हम रिएक्टेंट तो मान नहीं सकते, रिएक्टेंट तो मेरे पास यही है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट्स वाई दिस इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ रेट इज इक्वल टू के। नाउ अगर मैंने इसका जो है यूनिट ड्राइव करना है तो इसका किसके बराबर आएगा, रेट के, मीन्स इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड ऐसे ही कुछ जो रिएक्शंस होती हैं वो फ्रैक्शंस में भी होती हैं, जैसे H2 प्लस Br2 प्लस विल फॉर्म 2Br एंड इट विल फॉर्म के H2Br2 हाफ। बेसिकली एक्सपेरिमेंटली है, यहाँ से नहीं आपको पता लगेगा ना। ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल आता है ना। वट आर द एलिमेंट्री एंड द कम्प्लेक्स रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, जो उसका ऑर्डर होगा वो भी सेम आएगा और जो रेट हैं वो भी सेम आएंगे। लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो टू स्टेप्स रिएक्शन होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, जिसमें एक तो स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। रेट सिर्फ हम स्लो स्टेप से ही डिटरमाइन कर पाएंगे, फास्ट स्टेप से हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लें 2NO2 प्लस F2 इट विल फॉर्म 2NO2F, तो आप सिंपली रेट लॉ के बेस पे मुझे कहोगे कि रेट इज इक्वल टू के NO2 स्क्वायर एंड F। इसका मतलब वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज ये टू स्टेप रिएक्शन है। एक तो स्टेप ऐसा होगा NO2 प्लस F2 विल फॉर्म NO2F प्लस F, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप। नाउ अवर रेट डजंट डिपेंड अपॉन द fast step. Now our slow rate is the rate determining step, so rate is equal to K NO2 F2 and it is a second order. तो अगर पुराना अगर हम देखें नॉट ओवरऑल रिएक्शन ले देखें तो उस लॉ ऑफ मास एक्शन से वो थर्ड ऑर्डर होती है, लेकिन वी हैव टू अप्लाई द रेट लॉ एंड इट इज़ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सो जैसे हमने मोलर कंसंट्रेशन से यूनिट जो थे वो ड्राइव किए थे, इन द सिमिलर वे हम जो है अगर मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन की जगह कोई चीज़ गैशियस है और उसमें बार का दिया हुआ है, तो मोल पर लीटर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन में? बार। ठीक है, तो बार बार यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट निकाला था पर सेकेंड। तो अब मेरे पास जो है, तो रेट में क्या क्या यूनिट क्या होगा? बार पर सेकेंड। एंड कंसंट्रेशन क्या होगी? बार। नाउ मेरे पास इसका अगर मैं ए टू बी करूँ, तो इसका जो रेट है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, तो क्या बनेगा? ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बार पर सेकेंड एंड के एंड बार। नाउ के का यूनिट क्या आएगा? पर सेकेंड। ना इन द सिमिलर वे अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की फाइंड आउट करें, तो हम अगर ज़ीरो ऑर्डर की फाइंड आउट करेंगे, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास जो रिएक्शन है ए प्लस बी विल फॉर्म पी एंड द रेट इज़ इक्वल टू के ए बी। नाउ रेट क्या है? बार। एंड मेरे पास आएगा पर सेकेंड एंड इसका आएगा के बार स्क्वायर। नाउ मेरे पास क्या आएगा? बार बाय बार square per second and k. Now one of the bar will cancel and it will form per bar per second and k. In the same way, you can find out the unit for the third order reaction and the zero order reaction. Thank you very much.